आइज़िया 31 चैप्टर 32 चैप्टर पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 31 और 32 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। आइज़िया चैप्टर 31, folly of trusting to Egypt and forsaking God। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Woe to them that go down to Egypt for help and stay on horses and trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Yet he also is wise and will bring evil and will not call back his words। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि हम ये वचन व्यर्थ जाए इस प्रकार से ना पढ़े, परंतु हम इसके भेद समझ सके। तेरे अलावा पवित्र आत्मा हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, ये वचन अपने भेद के साथ हमें सिखा और ये हमारे अंदर हमारे चित्त में ठहरा रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। But will arise against the house of the evildoers and against the help of them that work iniquity. Now the Egyptians are men and not God, and their horses flesh and not spirit. When the Lord shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together. For thus hath the Lord spoken unto me, like as the lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him. He will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them. So shall the Lord of hosts come down to fight for Mount Zion, and for the hill thereof, as birds flying. So will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also he will deliver it, and passing over he will preserve it. Turn ye unto him from whom the children of Israel have deeply revolted. For in that day every man shall cast away his idols of silver and his idols of gold, which your own hands have made unto you for a sin. Then shall the Assyrian fall with the sword, not of a mighty man, and the sword not of a mean man shall devour him, but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited. 9 Vachan. And he shall pass over to his stronghold for fear, and his princes shall be afraid of the ensign, said the Lord, whose fire is in Zion and his furnace in Jerusalem। हम पढ़ेंगे चैप्टर 32, Blessings of Christ's Kingdom। Desolation foreshown, restoration promised to succeed। First verse, Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment, and a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken. The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammers shall be ready to speak plainly. A vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful. For the vile person will speak villainy, and his heart will work iniquity, to practice hypocrisy, and to utter error against the Lord, to make empty the soul of the hungry। देखा, सुसमाचार का विरोध क्यों किया जाता है? क्योंकि शैतान को मनुष्य का इस्तेमाल करना है दुष्टता करने के लिए, और आप लोग सुसमाचार देकर परमेश्वर की ओर उनका ध्यान खींचते हैं। ओके, तो ये वचन 6 वचन आप हिंदी में भी देखना कैसा लिखा है, ठीक है।
ये एरिया ऑफ लाइफ आपने प्रेयर में पकड़ना है। परमेश्वर कोई बात नहीं है, हमारा विरोध हुआ तो हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पिता हमारी एक सहायता कर कि जो भूखे हैं, मतलब जो परमेश्वर तुझ में जो भूखे थे, जो चाहते थे तुझ में से कुछ प्राप्त करे, तो उनको हमने दिया है। हमने परमेश्वर तेरा सब अच्छा और सब कुछ जो भी तेरा दया, प्रेम, शांति, अनुग्रह सब कुछ उनके अंदर उंडेल दिया है। ओके, और फिर अब परमेश्वर उनको सूखने मत दे, खाली होने मत दे, ये प्रार्थना करना है। ओके, एंड ही विल कॉज द ड्रिंक ऑफ द थर्स्टी टू फेल। ठीक है, तो इस प्रकार से दुष्टता के लोग ये काम करते हैं। ये दुष्टता के लोग, दुष्ट काम करने वाले मनुष्य के बारे में नहीं कह रही हूँ मैं, ये दुष्ट आत्माओं के बारे में कह रही हूँ। वो मनुष्यों के अंदर जाता है और ये काम उनके द्वारा वो करवाता है। ठीक है, जब आपका कुछ भी बिगड़ा जाता है परमेश्वर के राज्य में, तो आपको कोई विरोध करता है तो उस इंसान को मत देखिए, आप उसमें से कौन सा आत्मा आपका विरोध करने के लिए आया उसको देखिए। अगर वो मनुष्य विरोध कर रहा है ना, तो आप अगर उसको वचन बोलेंगे, आप उसको समझाएंगे परमेश्वर का प्रेम और दया से, धार्मिकता के रास्ते से उसको समझाएंगे, तो वो मान जाएगा। ओके, वो आपको स्वीकारेगा, आपको फेवर करेगा, आपके संगति में हो जाएगा। लेकिन अगर दुष्ट आत्मा है उसके अंदर, ओके, तो वो आपको मानेगा नहीं, वो जिद करेगा, टेढ़ी चाले चलेगा। इस प्रकार के जो वर्णन दिया है 6 वचन में, ऐसा चाले वो चलेगा। 7 वर्ष से पढ़ेंगे। The instruments also of the tool are evil. He deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right. But the liberal deviseth liberal things, and by liberal things shall he stand. Rise up, ye women that are at ease. Hear my voice, ye careless daughters, give ear unto my speech. Many days and years shall ye be troubled, and ye careless women, for the vintage shall fail, the gathering shall not come. Tremble, ye women that are at ease, be troubled. Ye careless ones, strip you and make you bare, and gird sackcloth upon your loins. They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine. Upon the land of my people shall come up thorns and briars, yea, upon all the houses of joy in the joyous city. Because the palaces shall be forsaken, the multitude of the city shall be left, the forts and towers shall be for dens forever, a joy of wild asses, a pasture of flocks, until the Spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest. Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field. And the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness quietness and assurance forever. And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting place, when it shall hail coming down on the forest, and the city shall be low in a low place. Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass. Thank you, Jesus. हम यशायाह की भविष्यवाणी 31 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा करेगा। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत है, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो दुष्टता का जब आपका सामना होता है तो आपको 2 बातें ध्यान रखना है।
एक बातें ये है कि उनके पास सपोर्ट्स रहते हैं, बिना सपोर्ट्स के वो चलते नहीं हैं, ठीक है। मसीह बिना सपोर्ट के भी निकल जाएगा, लेकिन दुष्टता के जगत का ग्रुप रहता है, ओके, अकेला वो काम नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा, उनके पास सवारी होती है, आत्मिक सवारी होती है। कोई रगड़े झगड़े के आत्मा पर सवार होकर आता है, कोई झूठ बोलने के आत्मा पर सवार होकर आता है, कोई वॉयलेंस एग्रेसिव होने के आत्माओं पर सवार होकर आता है। अलग अलग सवारियों पर वो आते हैं, ओके। और उस सवारी का बल पर वो विश्वास करते हैं कि वो जंग को जीत लेंगे, ठीक है। तो ये आत्मिक सवारियाँ और फिर उनका सपोर्ट्स, उनके सारे उनके संगति में अलग अलग पावर्स के सवार किए हुए लोग, उनके साथ संगति के लोग, ये अकेले काम नहीं करते हैं वो, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं, परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा। वह अपने वचन न टालेगा, हालेलुया, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है, ओके। तो उनका जो फिजिकल सपोर्ट्स है वो कोई पॉलिटिशियन लीडर्स हो सकते हैं, कोई प्रकार के लोग हो सकते हैं जो उनको कुछ तरह से लीगली सपोर्ट हो सकता है या कैसे भी हो सकता है, लेकिन उनके पास सपोर्ट्स होते हैं और फिर उनके पास आत्मिक सवारियां होती है। अलग अलग ताकत के बल के शक्तियों पर वो भर कर आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको महसूस होता है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, अरे नहीं कुछ तो ऐसा है वैसा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 31 अध्याय का देखिए, वह भय के मारे अपने सुंदर भवन में जाता रहेगा और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। आपको ये बोलना है ये वचनों को, जब विरोध आपके कोई इंसान ज़्यादा बल लगाने लगे, जोर लगाने लगे, तो बस ये वचनों को आपने बोलना है कि परमेश्वर तेरी तलवार का सामना करा उसको, मेरे परमेश्वर तू उनके हकीमों को घबरा दे, उनको उनकी ध्वजा को त्याग कर के भाग जाने के लिए मजबूर कर दे, उनको तेरे तलवार के सामने से भागने के लिए मजबूर कर दे। उनके जवान बेकार में पकड़े जाएंगे, ऐसा होने दे। उनके जवान यानी वो इंसान नहीं, उनके शक्तियाँ, ठीक है, जो उनके शक्तियों के नाम, ठीक है, वो पकड़े जाएंगे। इस प्रकार से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और देखिए फिर क्या होगा, यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है, ओके। तो परिस्थिति का नज़ारा मत देखिए, क्योंकि परिस्थिति का नज़ारा आप भाप रहे हैं, इसकी वजह से उसके ऊपर से आप अपने शब्दों को मत बोलिए, चुप रह जाइए। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार में जब यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म होना था, जकरिया को क्या किया, स्वर्गदूत ने चुप कर दिया, मुंह बंद कर दिया उसका, ओके, क्योंकि वो नेगेटिव बोल रहा था ओके। और यूहन्ना के बपतिस्मा के जन्म के तक उसको गूंगा बनाया रखा, और जब उसका जन्म हुआ तो वो नाम रखने के लिए उसकी ज़ुबान को खोल दिया गया, स्वर्गदूतों ने ये किया, ठीक है। तो इसके लिए जब भी आपके इमोशंस आपको डिक्टेट करने लगेंगे, आपको सूचनाएं देने लगेगी, तो अगर वो डर की सूचना है या आपको कोई भी सूचना ऐसी मिल रही है कि जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है, ठीक है, तो फिर आपको समझ जाना है कि आप भाप रहे हैं, कौन आपका सामना कर रहा है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, आपको पता चल रहा है, आपने सूंघ लिया है कि ये कौन आत्मा है जो आपका सामना कर रहा है,
ओके, वो इंसान तो आपके साथ बहुत मीठी मीठी बातें कर सकता है, लेकिन आप भाप चुके हैं कि उसके पास दूसरा और कौन मौजूद है, शक्तियाँ कौन सी मौजूद है, आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसके कारण आप वहाँ के वातावरण, वहाँ का हलचल आपको परेशान नहीं करना चाहिए, जहाँ पर आपको एकदम अनकंफर्टेबल लगता है। ओके, आप उसमें रुक नहीं पाते हैं, ऐसा लगने लगता है। तो ये कारण क्या है? क्योंकि आप भाप चुके हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर में कौन से आत्माएं हैं, आप भाप चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा भाप हो जाने से आपको जो आप काम करने के लिए उठे हैं, आपने उसको नहीं छोड़ना है, आप बने रहना है, काम पूरा करना है और आत्मविश्वास रखना है कि आपके लिए भी परमेश्वर जागरूक है, आपको उसने त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है। आपके अंदर से भी परमेश्वर की तलवार उन शक्तियों को दिखाई देती है। ओके, और वो भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर ये तलवार उठ चुकी तो। ठीक है, तो आपको पता है वचन, आपको पता है कौन सा आत्मा किस प्रकार से परमेश्वर के विरोध काम कर रहा है, और अगर आपने उसको फटकार दिया, वो समझता है कि बस हो गया, ओके, इसने तो पकड़ लिया हमको। ठीक है, तो इस तरह से है। और वो इंसान आपको दिखाएगा नहीं कि उसकी चोरी पकड़ी गई, वो इंसान नहीं दिखाएगा, वो इंसान आपको वैसा ही दिखेगा जैसा उसको आपने देखा है, जैसा वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। लेकिन उसके स्पिरिचुअल रियाम में क्या गड़बड़ी मच चुकी है आपके एक्शंस से, वो समझता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो सिर्फ अपने आप को ऐसे ढीठ बताता है, उसके देखने पर नहीं जाना है, क्योंकि ये आत्मा में जो हो चुका है वो बहुत जल्दी फिर शरीर में भी दिखने लगता है। ठीक है, लेकिन हम मसीह लोग ये सारी बातों का सामना नहीं किए हैं, क्योंकि हमको दुष्टता को सामना करने के लिए थोड़ी बनाया था। हमको तो परमेश्वर ने प्रभुता करने के रास्ते सिखाए थे, अधिकार दिया था। तो दुष्टता से हमारा तो कनेक्शन ही नहीं है, इसके लिए दुष्टता को हैंडल भी नहीं कर पाते हैं हम। ओके, दुष्टता का सामना तो दूर की बात है, लेकिन हैंडल भी नहीं होता है हमसे। ओके, क्योंकि उनके प्रभाव जो है, इन्फ्लुएंस जो है, उनका जो असर है, उनका जो हमारे में भाप लिया जाता है उनके अवस्थाओं को, वो हमको प्रश्न चिन्ह में डाल देते हैं, सवालों में डाल देते हैं। अब क्या करना है इसका? अब इसको कैसे सामना करना है? अब इसके क्या करने हैं? अब इसके बारे में क्या करना है? अब क्या करना है? अब बाद में क्या करना है? पहले क्या करना है? उसके आगे क्या करना है? क्योंकि हमको वो हैंडल करने के लिए नहीं था। ओके, इसके लिए हम उसके बारे में निर्बुद्धि जैसे हो जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर पुकार लगाओ, बाकी काम मैं संभालता हूँ। कितना आसान है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियाँ, आपकी परेशानियाँ जब आप कमेंट्स में लिखते हैं, तब यही वचनों का मेरे अंदर स्टडी रहता है। इसके लिए मैं आत्मविश्वास के साथ सिर्फ पढ़ती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस समय के लिए सिर्फ मुझे इतना पता है, इंतज़ाम हो चुका है। ओके, और वो इंतज़ाम ऐसा है कि वो आप देख नहीं पाएंगे, और मैंने बोलने से आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा की बातें केवल आत्मा ही से समझी जाती है। और आप जो बातें कर रहे होते कमेंट में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओके, तो आपको वो क्यों पता चल रहा है? क्योंकि आप भांप रहे हैं उन शक्तियों को। ओके, वो परिस्थितियों में शक्तियां हैं जो आप उनको समझ रहे हैं, और वो आप पकड़ पकड़ कर उनको बयान कर रहे हैं। ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ओके, तो मुझे इतना ही पता है, यहोवा को पुकारो। और जब मैं आपको जवाब देती हूँ तो सिर्फ आपको प्रार्थना ही जवाब में आ जाता है। ये ऐसे ऐसे प्रार्थना है, आप इसे सुनिए, या ये सब इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप सुनिए। मैं आपके कमेंट्स को ज़्यादा लाड प्यार नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने भांप लिया है कि आपके सताव में कौन मौजूद है।
ठीक है, इसकी वजह से हमने उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते हैं। हम ये देखते हैं यहोवा को पुकार, तेरी पुकार सुनी जाएगी और तेरा जवाब भी यहोवा की ओर से आएगा। और जो आपको माहौल में फैला रखा है, बहुत जल्दी वहाँ से सब कुछ बोरिया उठाकर निकल जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए परमेश्वर जब उठता है तो वो उसे सामना नहीं कर पाता है। हालेलुया। इसके लिए आप हमेशा निश्चिंत रहना है जब परेशानियां आपके समझ में आने लगती है, और बिल्कुल निश्चिंत रहना उस समय जब आपको हैंडल करने नहीं आता है। बिल्कुल निश्चिंत रहना, क्योंकि यही वो समय है आपको अपनी असली पहचान समझ में आती है। यही तो बात है कि परमेश्वर की मैं सृष्टि हूँ। हालेलुया। ओके, परमेश्वर की सृष्टि सिर्फ समझ सकती है सब कुछ, मनुष्य नहीं समझ सकता है। ओके, क्योंकि मनुष्य को दुष्टता के लिए नहीं रचना किया है। अगर दुष्टता के लिए रचना किया होता तो दुष्टता ही उसको पूरी तरह से स्टडी करके दे दिया होता। परमेश्वर ने कहा भले बुरे ज्ञान का फल मत खा, उसमें सारी दुष्टता थी। ओके, उसमें सब कुछ सेल्फिशनेस था, खुद के लिए क्या चाहिए वही सब कुछ था। ओके, तो परमेश्वर ने कहा उसको मत कर, खुद के लिए मत जी, शरीर के लिए मत जी, अपनी बुद्धि समझ पर भरोसा मत रख। नहीं, परमेश्वर नहीं रखने के लिए बोलता है तो हमको जिम्मेदारी क्यों उठाना है कि संकट क्या है, जिम्मेदारी क्यों उठाना है कि कौन इसके पीछे है, जिम्मेदारी क्यों उठाना है कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्यों करना है इतना सब। ओके, शांत रहे, स्थिर रहे, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हालेलुया। इसके लिए तो हम प्यार करते हैं, दीवाने हैं परमेश्वर के, क्योंकि हमको आता ही नहीं है जीना। हालेलुया, हमको जीना ही नहीं आता है। हालेलुया। बहुत आसान है हमारा जवाब। जब दुष्टता हमारा विरोध करने के लिए आते हैं ना, तो हम बिल्कुल जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हमको ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हमको आता ही नहीं है उनका सामना करना। आसान है। ओके, तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही बनता है, लॉर्ड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, प्रभु पता नहीं क्या हो रहा है, प्रभु मेरे लिए सहायता कर, मेरी सहायता कर, मुझ पर अपने रहम दे, मुझ पर अपना भरोसा उठा, ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा परमेश्वर तेरी ओर मेरा ध्यान खींच, ताकि मैं समझ सकूँ ये क्या हो रहा है। ठीक है, और जब समझ में भी आए तो भी हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हैंडल होना तो परमेश्वर ही से होगा। तो वो भी हम मांग लेते, लॉर्ड इसको जल्दी से कुछ निर्णय दे दे, जल्दी से। ओके, हमारा पीछा छुड़ा ले। ओके, हम शत्रु के हाथों पकड़े, फंस गए, निकाल हमको उसके हाथों से बाहर। बस खत्म। एंड देन बी स्टिल, क्योंकि आपको निपटना नहीं है। बी स्टिल माय डियर फ्रेंड्स, बी स्टिल। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। हालेलुया। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, परमेश्वर को करने दीजिए काम। ठीक है, आपको जो भांपने के लिए मिल रहा है उसको आप लेके दौड़िए मत यहाँ वहाँ से। ठीक है, जस्ट बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहे, स्थिर रहे और जान ले मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ठीक है, यही आप बताते हैं परमेश्वर को कि आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझे नहीं हैंडल करने आ रहा है। दैट्स द हम्बलनेस। ओके, वही परमेश्वर को जागृत करता है हमारे लिए कि ये हैंडल नहीं कर सकता है। मैं जानता हूँ मुझे बीच में जाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ रास्ता करना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप खुद अपने रास्ते बनाना शुरू करते, परमेश्वर नहीं करेगा उसके अंदर कुछ काम। ओके, आप शांत रहिए। दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, दर्द है, पीड़ाएं हैं, आप हैंडल नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आप हैंडल नहीं कर सकते, इसके लिए आपने क्या करना है, केवल आगे निकलते जाना है। परमेश्वर ने आपके लिए जो मेरे अंदर से प्रार्थनाएं निकाली है, जो प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के मुंह से भविष्यवाणियों को मैंने आपके लिए कबूल कर लिया है, जो अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में से आपके लिए मैंने जो भी सामर्थ्य चाहिए उसको मांग लिया है। आप प्रोटेक्टेड हो। हालेलुया, आप प्रोटेक्टेड है। निकलते रहिए। बस भांपने के लिए क्या मिलता है उसके ऊपर से अपने मुंह के शब्द मत बनाइए, जस्ट मुंह बंद रखो, निकलते रहिए।
बहुत जल्दी परमेश्वर आपके जवाब मैनिफेस्ट करेगा। हालेलुया, प्रकट करेगा। हिम्मत नहीं खोना है। जब मेरे पास रिक्वेस्ट आता है तो मैं जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने क्या करना है वो मैंने कर दिया होता है। हालेलुया। ओके, तो मुझे जवाब देना क्या है, क्या जवाब दूँ? मेरे पास कोई जवाब होता तो मैं देती। जवाब तो यहोवा से आता है ना, तो हमने तो उसी पर इंतज़ार लगाना है। तो हम बस कमेंट ले लेते हैं, ऊपर परमेश्वर की ओर भेज देते हैं। ओके, जवाब आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर और हमारा रिश्ता है। दुष्टता से मत डरिए। ठीक है, दुष्टता से मत डरिए और दुष्टता को हैंडल भी मत कीजिए। सबसे बड़ी बात है, दुष्टता को हैंडल भी मत कीजिए। दुष्टता में हैंडल करने की चालाकी भी मत सीखिए। मैंने कोशिश की थी। मून फेसेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ सीखने की कोशिश की थी मैंने। क्या है, क्या ये सीखने की मतलब ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश की थी। अरे लेकिन क्या है, सब मुझे व्यर्थ लगने लगा। मैंने बोला ये कुछ भी दम नहीं है, ये कुछ भी जो मैं इंस्ट्रक्शंस देख रही हूँ है, सब कुछ है उसके अंदर, बहुत कुछ है, अगर फायदे का कुछ भी नहीं है। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। और यही के लिए मुझे परमेश्वर ने उद्धार में लाने के बाद सबसे पहला एक्लेसियस्ट पढ़ाया, सभोपदेशक पढ़ाया, आराम से बैठ के मुझे पढ़ाया। ओके, तेरा मन इस दुनिया में नहीं लगता है, तू बेहतरीन जगह में है, क्योंकि ये सब व्यर्थ है। तेरा जो इम्पोर्टेंट, जो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो जगह मैं तुझे देता हूँ यीशु मसीह के अंदर। वो जगह परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। अब मुझे जीवन व्यर्थ नहीं लगता है, क्योंकि अब मैं सिर्फ यीशु के लिए जीती हूँ। जगत में जो कुछ भी चलता है, इट्स ओके, इट्स नॉट माई पार्ट ऑफ बिजनेस। ओके, आगे चलते हैं। 32 अध्याय को पढ़ेंगे, पहले वचन से पढ़ेंगे। धर्मी राजा, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। देखिए, परमेश्वर का आत्मा काम करने लगता है तो ये चेंजेस हमारे अंदर, हमारे बीच में हम अनुभव करने लगते हैं। इसको हमने लेना है, इसको हमने भांप लेना है। समथिंग डिफरेंट हैपेंड। ओके, वाओ, समथिंग, परमेश्वर की प्रशंसा निकल आ रही है मेरे अंदर से। वाओ, परमेश्वर की अन्य भाषा निकलती है मेरे अंदर से। वाओ, ओके, बस वाओ वाओ करने वाला परमेश्वर का जो वर्णन है, उसी में आप मगन रहिए। ओके, कोई भी समय बंदी गृह में पड़े हुए पतरस सिलास भी ऐसे ही मगन रहे। हालेलुया, स्वर्गदूत खींच लाए उन्होंने। ओके, दानियल ने भी उस समय प्रार्थना में घुटने लगा दिए जब उसके ऊपर तलवार चढ़ाई रखी थी कि अगर तू किसी अन्य परमेश्वर को मानेगा तो फिर तू तो गया। ओके, लेकिन फिर उस बीच में भी परमेश्वर की वो दानियल क्या कर रहा था? प्रार्थना के समय में प्रार्थना किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। ओके, क्योंकि उसने किसको भांप लिया था? वो नहीं भांप लिया था जो नबूकदनेस्सर कह रहा था। ओके, जो नबूकदनेस्सर की ओर से षड्यंत्र करके रचा गया था, उसको वो भांपने की ज़रूरत नहीं। वो भांप सकता था, वो नहीं भांपा उसने। ओके, उसने किसको भांपा? जो परमेश्वर का है, वो सब कुछ को भांपता गया, स्वीकारता गया, भांपता गया, स्वीकारता गया। दिन गए, रात गए, दिन गए, रात गए, प्रार्थना 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 प्रार्थना। 21वां दिन आ गया, स्वर्गदूत उस तक पहुंच गया। आखिरी में बीच में क्या क्या चेंजेस हो गया वो स्वर्गदूत को ही पता है और बाइबल में लिखा है, और लेकिन हमको इतना पता है जवाब आ गया। ओके, तो इस तरह से है, हमको जो दुष्ट के जगत का माहौल भांप लेना आ जाता है, उससे हमको अपने मुंह के शब्द नहीं बनाना है। ये लेसन नंबर 1 स्पिरिचुअल लाइफ में। ओके, जो दुष्ट के जगत में से हम भांप लेते हैं, उसको हमने अपनी ज़ुबान के शब्द नहीं बनाना है। ठीक है,
उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होगी। हमने उनको उन शब्दों को बोलना है जो परमेश्वर की बातें हैं, और उसको हमने जानबूझ के भांप लेना है। परमेश्वर की ओर का क्या है उसकी तरफ हम अपने भांपने के यंत्र को चलाना शुरू करना है। ठीक है। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। हालेलुया। मूढ़ फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहा जाएगा, क्योंकि मूढ़ तो मूढ़ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही गढ़ता रहता है, कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। छली की चालें बुरी होती है, वह दुष्ट युक्तियां निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक नम्रता से भी बोलते हो। तो आपके बहुत सुंदर कैरेक्टर, बहुत नाइव क्रिश्चियन लाइफ, एकदम शुद्ध सीधा साधा, एकदम ज़बरदस्त इनोसेंट, सिंपल माइंडेड, बहुत प्यार भरा, सब कुछ व्यर्थ है दुष्टता के जगत में। हालेलुया। वो परवाह नहीं करते हैं आप कितने सॉफ्ट इंसान हैं। ठीक है। वो अपने तीखे वार करना नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। तो आपके नाइव क्रिश्चियन होने का मतलब ये मत लीजिए कि दुष्ट के कोई काम आपके ऊपर लगेंगे नहीं। हालेलुया। दुष्ट का काम यही है कि वो युक्तियां बनाते रहता है, दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते होते हैं, फिर भी ऐसा वो करेंगे। ठीक है। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब दुष्ट की युक्तियां टिकती नहीं है, लेकिन परमेश्वर की युक्तियां टिकती है जो हमारे अंदर है। ओके। यरूशलेम की स्त्रियां, 9 वचन से आगे। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चिंत पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाखें न होगी और न किसी भांति के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ। हे निश्चिंत स्त्रियों, विकल हो। अपने अपने वस्त्र उतारकर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। हे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। मेरे लोगों के वरण प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और उन पर के पहरुओं के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। हालेलुया। मतलब परिवर्तन और जब तक मनुष्य का नहीं होता है तब तक आपको ये सारा कोलाहल, उसके बीच में देखो 12 वचन कहता है कि छाती पीट पीट के रोना, परमेश्वर से मांगना, ये तो चलता रहेगा माय फ्रेंड्स। ओके। तो आप छोड़ दीजिए ऐसे कमेंट्स करना, आप सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आप बयान मत कीजिए, बस आपको क्या चाहिए उतना ही आप लिख दीजिए। ठीक है। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम
जो जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गदहों को स्वतंत्रता से चराते हो। हालेलुया। ये वचनों को अपने ऊपर बोलते जाना है। 15 वचन से लेकर ये आखिरी 20 वचन तक हमने बोलना है, ठीक है। थैंक यू जीसस, जैसा हमने मांगा था आपने हमें प्रकाशनों से भर दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि ये वचन हमारे चित्त में काम करें और इसके अनुसार परमेश्वर हम तुझे और ज़्यादा मजबूती से पहचाने और तुझ पे स्थिर कर दिए जाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। John 2 chapter 12 verse 25 12 verse 25 chapter 12 verse 25 वर्स तक और 1 Kings 6 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 12 वचन से 25 वचन तक, पहले राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय। हमने 2 साल के बाइबल रीडिंग को अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ना है और ऐसा करते हुए हम जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे पर्सनल व्यक्तिगत समय में हमसे बातें करेगा। हालेलुया। आप करीब हो जाएंगे, आप करीब नहीं, आप खुल जाएंगे परमेश्वर में, खुलेंगे, आप खोल दिया जाएगा। करीब क्या है? परमेश्वर खुद, उसका आत्मा हमारे आत्मा के अंदर रह रहा है, तो और क्या करीबी चाहिए? वो खुद हमारे अंदर एक हो चुका है, तो करीबी का सवाल ही नहीं आता है। अलग अलग कुछ है तो हम करीबी की बातें करें, लेकिन वो एक हो चुका है हमारे अंदर, हमारे आत्मा में, तो करीबी का सवाल नहीं है, आप खुलने का सवाल है। ओके, आप खुलने का सवाल है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर में खुलते जाएंगे, शरीर में बंद होते जाएंगे, आत्मा में खुलते जाएंगे। ओके, शरीर की अवस्थाओं को आप छोड़ते जाएंगे और आत्मा की अवस्था को आप पकड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम नए सृष्टि बन गए हैं। तो परमेश्वर चाहता है हम मसीह के चरित्र में ढल दिए जाएं। तो इसके लिए हमको परमेश्वर वचनों को सिखाता है। पवित्र आत्मा के अलावा कोई और हमको सिखा नहीं सकता है माय फ्रेंड्स। ओके, और वो आपके अंदर है, हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, तो हमने उसका लाभ उठाना है। 2 साल के अंत में देखेंगे हम परमेश्वर के आत्मा ने कैसे कैसे हमको सिखाया, किस प्रकार से हम ढल गए अपने चरित्र में, किस प्रकार से हम परमेश्वर के अंदर खुल गए और कैसे हम अब परमेश्वर को जानने लगे हैं। हालेलुया। और इसीलिए वचन भी कहता है ना Psalms 91 में कि जो मेरे नाम को उसने जान लिया, इसके लिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। पोजीशन से यीशु मसीह ने भी उसको दिया गया काम पूरा किया, तभी उसको पोजीशन मिला परमेश्वर का दाहिने हाथ बैठने का। ओके, तो हमको भी परमेश्वर कहता है अगर तुमने मुझे जान लिया, मेरे नाम को जान लिया, तो मैं तुमको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। वो पोजीशन अब जहाँ यीशु है, सारी यूनिवर्स उसके पैरों के सामने झुका दी गई है। हालेलुया। उसके पैरों की चौकी बना दी है, उसके बैरियों को प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे चौकी बना के रख दिया है। ओके, ये पोजीशंस के लिए ही हम इस पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के साथ संगति में चल रहे हैं, क्योंकि वो हमको भी ऐसे ऐसे पोजीशंस में रखना चाहता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वचन सीखते जाएंगे, वैसे वैसे स्पिरिचुअल पोजीशंस में हम उन्नति करते हुए जाएंगे। ओके, तो प्रमोट होते हुए जाएंगे, हमारा पोजीशन हो जाएगा स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स में, स्पिरिचुअल रियाम्स में। ओके, अब यीशु जिस पोजीशन में है, वहाँ से अब हमारी पोजीशंस है, तो अब हम उस पोजीशंस में, अब हमारे लिए परमेश्वर ने रखा हुआ पोजीशंस हमने कैच करते हुए चलना है। ठीक है, अब इसके बाद जब 2 साल के अंत में देखेंगे आप, परमेश्वर ने जैसा चाहा था उस मंजिल में आप रहोगे और परमेश्वर आपका बहुत इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, तो ये होने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है जो सिखाता है हमें, पवित्र आत्मा है, सच्चाई का आत्मा, अनुग्रह और दया का आत्मा है। ठीक है, उस आत्मा का हमने लाभ उठाना है, सीखना है परमेश्वर के वचन अकेले में बैठकर। ओके, और ये सब
कुछ के लिए परमेश्वर जो हमको देना चाहता है हम उसे प्राप्त कर लेना है। नासरी यीशु मसीह के नाम से हमें ये प्राप्त हो जाए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं ये वचनों को फिट एंड फिक्स करना हमारे अंदर, और हमें जिस डेस्टिनी में परमेश्वर चाहता है उस मंजिल में होने के लिए, डेस्टिनी में होने के लिए हमारे अंदर से तू काम कर और हमें डिवाइन ईश्वरीय व्यवस्थितपन में लेकर आ, ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन।